ناظرین، دنیا کی نیندیں اڑ گئی جب ایرانی سرزمین سے اڑنے والے میزائلوں نے اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام کو زمین بوس کر دیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ ایران اب صرف دفاع نہیں کرتا، وار کرتا ہے۔ کیا سجیل میزائل نے خطے کی تاریخ کا موڑ اور رخ تبدیل کر دیا ہے؟ کیا فتح ہائپرسونک میزائل واقعی دنیا کے ہر دفاعی نظام کو ناکام بنا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم ایک نئی عالمی جنگی دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ ایرانی میزائل کتنے طاقتور ہیں؟ کیا یہ جنگ کا نیا باب کھول سکتے ہیں؟ کیسے ایران کے شہداء کے دور میں بنائے گئے میزائل اور ہتھیار کس طرح ایران کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں؟ ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے میں پہلی بار سجیل میزائل کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل میں اب تک کا سب سے خوفناک حملہ تھا یہ۔ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج اور عوام بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر داغا گیا نیا میزائل سجیل 2 کتنا خطرناک ہے؟ ایران کا جدید فتح ہائپرسونک بیلسٹک میزائل جسے کوئی دفاعی نظام تباہ نہیں کر سکتا۔ اس ویلاگ میں اس تمام تر ایران کی عسکری قوت کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور اسرائیل کو اب کیا ڈر لگ گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں سواق احمد۔ ناظرین، ایران نے اسرائیل کے تل ابیب اور دیگر شہروں کو نشانہ بنا کر اپنے دفاعی ارادوں اور صلاحیتوں کا سخت پیغام دے دیا ہے۔ ہائپرسونک بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے لیس ایرانی فوج اب پورے خطے میں خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ آخر ایران کے پاس ایسی کون سی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو جدید دفاعی نظاموں کو بھی ناکام بنا سکتی ہے؟ یہ پہلے ابہام ہوا کرتا تھا، اب ایران نے وہ سب کچھ دکھا دیا۔ پہلے ایران وہ میزائل جب بتاتا تھا پوری دنیا کو ہمارے پاس ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پر تو عالمی پابندیاں ہیں، ملکوں کی ٹریڈ نہیں ہے اس کے پاس، شاید وسائل بھی نہیں ہیں، کہاں یہ ایران ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب جب مقابلے پہ آیا تو چیخیں نکل گئی اسرائیل کی بھی، اور اب امریکہ بھی پریشان ہے کہ جو غلطی ہم نے کی اٹیک کر کے، اس کا جواب ہمیں کس صورت میں ملنے والا ہے۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اپنی سرزمین سے محض 7 منٹ کے اندر ہی تل ابیب کو نشانہ بنا کر واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی طاقت کے بل پر کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ اس کارروائی نے ایران کی میزائل صلاحیتوں کو ایک بار پھر عالمی منظر نامے پر اجاگر کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے پاس اس وقت 2 سے 2.5 ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں، جو اسرائیل، بھارت اور پورے خطے میں موجود حریفوں کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کے 3 اقسام کے مہلک میزائل سسٹم ہیں۔ ایران کے پاس یہ 3 اہم جو اقسام ہیں، اس میں ہائپرسونک میزائل، بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل شامل ہیں۔ ان میزائلوں کو نہ صرف طویل فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، بلکہ یہ جدید دفاعی نظاموں کو چکمہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہائپرسونک میزائل کی بات کی جائے تو یہ الفتح ہے، جس کے کارنامے آپ نے دیکھے ہیں۔ الفتح ایران کا جدید ہائپرسونک میزائل ہے، جس کی رینج تقریباً 1400 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل آواز سے کئی گنا زیادہ، تقریباً 5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اسے اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ دشمن کے تمام جدید فضائی دفاعی نظاموں کو عبور کرتے ہوئے اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کر سکتا ہے۔ کروز میزائل کی بات کی جائے تو الفتح 2 ہے۔ الفتح 2 ایک انتہائی کارآمد کروز میزائل ہے، جس کی 1500 کلومیٹر تک مار ہے۔ یہ میزائل پرواز کے دوران کئی بار اپنا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کم بلندی پر پرواز کر کے ریڈار سے بچ نکلنے میں کامیاب رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ میزائل محض 400 سیکنڈ میں تل ابیب جیسے اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے ایران کے تیز ترین اور اسٹریٹجک میزائلوں میں شامل کرتا ہے۔ ایران کے 9 اقسام کے بیلسٹک میزائل ہیں۔ ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائلوں کی ایک جامع رینج موجود ہے، اور ان میں فتح، سجیل، خیبر، عماد، شہاب، غدر، پایا، خیبر شکن اور حاج قاسم شامل ہیں۔ یہ تمام میزائل مختلف رینج، رفتار اور تباہ کن صلاحیتوں کے حامل ہیں، اور ایران کی دفاعی اور اسٹریٹجک قوت کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ غدر میزائل سیریز کو 2005 میں متعارف کروایا گیا۔ اس سیریز میں مختلف رینج والے ورژن شامل ہیں۔ غدر ایس یہ میزائل 1350 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ غدر ایچ اس کی مار 1650 کلومیٹر ہے۔
गदर एफ सबसे तवील रेंज रखने वाला मिसाइल है जो 1950 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। खैबर शिकन एक दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरानी दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये मिसाइल जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों को अबूर करके हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। खैबर शिकन 1 और 2 मुमकिना तौर पर 1450 किलोमीटर तक वॉर हेड्स ले जा सकते हैं। इमाद मिसाइल की बात की जाए, इमाद ईरान का एक माया ईंधन से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो अल कदर मिसाइल का बेहतर और जदीद वर्जन तस्वुर किया जाता है। इसका वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि ये 1700 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल न सिर्फ तवील फासले पर वाक़ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, बल्कि हदफ पर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ वार करने की भी काबिलियत रखता है, जो इसे ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक नुमाया मकाम देता है। क्रूज़ मिसाइल की खुसूसियात की बात की जाए तो क्रूज़ मिसाइल मुकम्मल तौर पर गाइडेड होते हैं और कम ऊंचाई पर परवास करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से वो रेडार का मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। क्रूज़ मिसाइल की रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटा से शुरू होती है। ईरान की ये मिसाइल ताकत उसके स्ट्रेटेजिक दिफाई नज़रिए का मज़हर है, जिसके ज़रिए वो न सिर्फ मुमकिन ख़तरात का सामना करने की भरपूर तैयारी रखता है, बल्कि हमले की सूरत में फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल देने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि इसराइल पर मिसाइल हमलों की ताज़ा तरीन लहर में पहली बार भारी और तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्होंने इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक इन हमलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया है और अब मकबूजा इलाकों की फ़ज़ाएँ ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के लिए खुली हैं। पासदारान इनकलाब के बयान के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की ताज़ा तरीन लहर में इंतहाई भारी सजील मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिनका हदफ मकबूजा इलाकों में मौजूद मुतअद्दिद मकामात था। बयान में कहा गया कि मिसाइल हमले मुसलसल और मरकूज़ रहेंगे, जबकि ईरान की तरफ से इसराइल पर दागा गया नया मिसाइल सजील 2 कितना ख़तरनाक है, ये जब मालूम हुआ तो इसराइलियों के भी पर खच्चे उड़ गए। वो भी खौफ में मुब्तला हैं और इस वक्त जब वो अपने बंकर्स में मौजूद हैं तो ये तवील तरीन दौरानिया है जब वो अपने बंकर्स के अंदर मौजूद हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले स्टेज 2 के सजील मिसाइल के आसमान पर मनाजिर दुनिया भर में मौजूद बहस हैं, जबकि दिलचस्प बात यह है कि इसराइल का दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए 2000 किलोमीटर और इससे आगे तक मार करने वाले सजील 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया और 2 मरहलों पर मुश्तमिल सजील 2 मिसाइल एक ठोस ईंधन से चलने वाला मिसाइल है, इसलिए इसमें ईंधन भरने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, जिसका मतलब है सजील 2 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयारी का वक्त कम हो जाता है। यह मिसाइल जो ठोस ईंधन के इंजन पर मबनी है, दूसरे ईरानी मिसाइलों के मुकाबले में लॉन्च करने में ज़्यादा दुरुस्त और तेज़ समझा जाता है और इसमें 500 से 650 किलोग्राम वजनी वॉरहेड है। ईरान ज़्यादातर मुल्क के मगरबी हिस्से से इसराइल पर मिसाइल फायर करता है, लेकिन सजील 2 की लंबी रेंज की बदौलत इसे मगरिब की बजाय मुल्क के किसी भी इलाके में मौजूद अड्डों से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने 1990 की दहाई के आखिर में मिसाइल तैयार करना शुरू किए थे। सजील का पहला बाज़ाब्ता ऐलान ईरान ने नवंबर 2008 में एक कामयाब लॉन्च के दौरान किया था और ईरान आने वाले दिनों में हर दिन ना सिर्फ इसराइल को सरप्राइज़ कर रहा है, बल्कि अमेरिका को भी सरप्राइज़ कर रहा है और फिर उसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी सरप्राइज़ कर रहा है। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक ईरान ये जंग तकरीबन 6 महीने तक लड़ सकता है और ईरान के पास इस हवाले से जो बताया जाता है कि तकरीबन 3000 मिसाइल मौजूद हैं, ये तो आलमी एजेंसियां बताती हैं। जब ईरान खुद कहता है कि उसे ये इल्म हो गया था कि उस पर हमला होने वाला है और गुज़िश्ता कुछ महीनों में उसने अपनी मिसाइल बनाने की सलाहियत को बढ़ा दिया था, यानी जहां पर पहले वो 1000 मिसाइल बनाते थे, अब वहां पर उन्होंने 2000 मिसाइल बनाना शुरू कर दिए थे। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पहले जिसने भी ये कैलकुलेशन की थी ईरान पर कि हमला करेंगे और ईरान कुछ नहीं कर सकेगा और करेगा भी तो 1-2 दिन के लिए करेगा, ये चलें हफ्ता कर लेगा, लेकिन जब ईरान हम पर हमला करेगा तो हमारे पास 3 किस्म के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। हमारे पास जहाज़ मौजूद हैं जो कि हवा में उड़कर उन मिसाइलों को नाकाम बनाएंगे। जॉर्डन की एयर स्पेस उनको नाकाम बनाएगी। फिर जो समुंदर के अंदर बहरी बेड़े मौजूद हैं जो कि अमेरिका के हैं,
وہ डिटेक्ट करके उसको नाकाम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नाकाम ना बनाया जा सका। ईरान एक समझदारी के साथ ये जंग लड़ रहा है। ईरान को ये पता है कि उसने एक तवील जंग लड़नी है। उसे ये पता है कि उसका दुश्मन अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी दुनिया तकरीबन खड़ी है। क्योंकि आप देखें, यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा, ये वो सब ममालिक हैं जो इसराइल को इमदाद देते हैं, जंगी इमदाद देते हैं, असलहा देते हैं, और वो असलहा गोला बारूद और जहाज़ों की शक्ल में है, बहरी बेड़ों की शक्ल में है। तो इसलिए ईरान को पता है कि जब इन सब से टक्कर लेनी है तो एक तवील जंग की तैयारी उसने कर रखी है। अब ईरान की समझदारी ये है कि जहाँ पर उसे ये मालूम है कि उसके मिसाइल को डिटेक्ट किया जा सकता है और मार गिराया जा सकता है, वो पहले ड्रोन्स भेजता है, उस आयरन डोम सिस्टम और मज़ीद सिस्टम्स को इंगेज करता है, और उनको इंगेज करने के बाद इस तरह से उस मिसाइल को लॉन्च करता है कि वो अपने हदफ पर जाकर निशाना बनाए। आपने गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर वो तबाही की वीडियोस नहीं देखी होंगी जो 2 दिनों के अंदर आप देख रहे हैं। ये नहीं कि गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर इसराइल में तबाही नहीं हुई, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब लोग उसको पोस्ट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर लोग खौफज़दा हो गए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादातर इसराइल को छोड़ भी दिया है, क्योंकि ये प्रॉमिस्ड लैंड के लिए वहाँ पर आए थे। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो किसी और मुल्क की शहरियत भी रखते हैं, तो इसलिए ये इस मुल्क से यानी इसराइल से जा रहे हैं, क्योंकि खौफ बहुत है। क्योंकि इसराइल जो है वो, आप अगर इसका अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये लाहौर से थोड़ा सा बड़ा होगा रकबे के लिहाज से, और कराची से तो बहुत ही छोटा है। तो इतने रकबे के इलाके में आप खुद सोचें, जब मिसाइल अपने टारगेट पर लग रहे हों और उसकी गूंज पूरे मुल्क के अंदर आती है, और वो लोग बंकर्स में रह रहे हैं, और बंकर्स में इतने दिनों से रहने से उनके अंदर ये तब्दीली आई है कि वो लड़ना शुरू हो गए हैं एक दूसरे के साथ। फिर आपने देखा कि हर वक्त सायरन बजते रहते हैं, और आज तक उन्होंने सिर्फ इसराइल की बर्बरियत दूसरे मुल्कों पर देखी थी। उन्होंने समझा कि ईरान भी इराक है, लिबिया है, या कोई और मशरक़ वस्ता का मुल्क है जो डर कर बैठ जाएगा। लेकिन ईरान ने यह साबित किया कि वो एक सोया हुआ शेर था जिसको अब जगा दिया गया है। आप देखें कि वो अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद कहते हैं अमेरिका और इसराइल कि ईरान टेबल पर बैठे। ईरान कहता है कि पहले मैं अपना हक इस्तेमाल करूंगा, और अपने दिफा का वो हक इस्तेमाल करने के बाद मैं सोचूंगा कि क्या करना है। और अब भी ईरान की जानिब से ये खुली वार्निंग दी गई है यूएस को कि मेरे जवाब का इंतज़ार करो। और ईरान ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर जंग आप शुरू कर रहे हो और आपने कर दी है तो इसका इख्तिताम मैं लिखूंगा, और वो इसराइल और अमेरिका के लिए दर्दनाक होगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।